Namaste, everyone. Please Hello, on your ma'am. camera. Hi, How are you? I'm good. How are you? I'm also good. Thank Good. you. Okay. Can we start? Yeah, sure. Okay. So first, I will give introduction of myself. Okay. Namaste, everyone. I'm Aditi. I have been working in this field of yoga and wellness over 16 years. I teach yoga both online and offline across all over the world. Not only teaching yoga, but mindfulness and stress management with students, corporates, and women at the different stage. Means like if they have a PCOD problem, PCOS, fertility, this all field I'm including in my business. Okay, my strongest area is prenatal yoga and natural childbirth preparation. Today we will going to discuss like all the topics in a very short form so that you can get a good idea how we will going to start our TTC program. Everyone are comfortable with the English, or you want me to use Hindi? Are you comfortable with English? Yes, ma'am. Okay, great. Okay. I work with expecting mothers using safe evidence-based practices, which is why doctors must and recommend me during that pregnancy journey. Basically, doctors and I have done collaboration that I will teach you in TTC program, how you can also collaborate with the clinics, hospitals, and the doctors. Okay, so this can be a wonderful your like learning and earning way of things. Okay, now firstly we will start with some point. Let me change my slide. Okay, now few questions I will going to ask you. Please give me answer so that we can go further very fast. Okay, ready? Okay, great. I want you to be attentive so that you can get a very good idea about prenatal TTC program. Today, I'm going to relieve so many things of prenatal journey of women. And I'm going to break your thought also towards the prenatal. We thought of like कि prenatal program कौन कर सकता है. तो जिनको एक्सरसाइज कम करनी हो या तो इसमें रिलैक्सेशन ज्यादा होगा या तो ये जेंटल योगा का फॉर्म रहेगा. बट दिस इज नॉट ओनली फॉर एक्सरसाइजिंग. Many more things we will going to include today. So Garbh Sanskara also, anatomy also, it's a part of the prenatal. Okay, how they can deliver baby very fast in a minimum time. Okay, so that all every topic we will going to cover in a prenatal. So now honestly, first I want answer from you. When you hear prenatal yoga first time, what comes in your mind? You can answer in chat box, or you can like just open your mic and tell me. Anyone? आपको ये करियर ऑप्शन दिख रहा है जहां पे आप एक स्केलेबल इनकम बना सकते हो? Yes, ma'am. Yes, because Income can do nowadays, that. like not even Indian people, even the overseas people are that other country females also including this prenatal journey during their pregnancy. Okay, so it is actually a wonderful tool to learn. Now, the second thing I want to ask you, just imagine if a pregnant woman walks into your class tomorrow, would you feel 100% confident teaching her if Yes, you are ma'am. I not have taught. Yes, taking ma'am. I have taught few pregnant ladies also, so I'm pretty confident.
Very nice. So, like, if you don't have this course certifications, if you don't know about the prenatal, how it works on her body, have you heard the name of inferior cava vein? No, No. ma'am. So this is what actually prenatals we need to learn. Okay, before start this journey, I always prefer we should learn this part of the yoga also, because see the vein which I told you currently वो काम क्या करता है. तो हम लोग जब नॉर्मली हम लोग को सोना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा लाई डाउन होके सो सकते हैं. प्रेगनेंसी के अंदर ये अलाउड नहीं है. रीजन क्या है कि जो हम लोग की जो मेन वेन है, जो मैंने आपको बोला इंफीरियर कावा, so how that vein works, तो हम लोग की जो लोअर बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाने का काम वो वेन का है. ओके, एंड इफ वी आर लाइंग डाउन ऑन बैक ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी तो वो ऑक्सीजन भी कम हो जाता है. नॉट ओनली इन बेबीज बॉडी, इवन इन द मदर्स बॉडी ऑल्सो. उनको सपोज नहीं सोने मिले स्ट्रेट सीधा, दे फील एंशियस ऑल्सो, बिकॉज हम लोग को ऐसे हैबिट था और सडनली किसी ने बोल दिया कि अभी आप नहीं सो सकते हो. सो हाउ वी विल गोइंग टू गिव रिलैक्सेशन टू हर बैक ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. सिमिलरली उन लोगों के ब्लड फ्लो पे भी इम्पैक्ट ना आए, उनके ऑक्सीजन लेवल भी रिड्यूस ना हो. सो दिस ऑल वी विल कवर इन प्रीनेटल टीटीसी प्रोग्राम. एंड एक्चुअली बिलीव मी, ये हम लोग कोर्स या डिग्री लेने के बाद जब करते हैं तो आप लोग को उसका इम्पैक्ट दिखेगा. इवन इन द क्लाइंट ऑल्सो दे कैन सी कि भाई इनके पास नॉलेज है, आई एम सेफ, माई बेबी इज सेफ. हम लोग प्रेग्नेंट नहीं है ना, तो कहीं पर भी योगा सपोज एक टाइम इमेजिन कर लेते, कहीं से भी सीख लेंगे, हम लोग को बजट की प्रॉब्लम होगी तो इन प्रेगनेंसी दैट लेडी वॉन्ट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क विद हर चाइल्ड. करेक्ट, वो प्रेगनेंसी में ये सब रिस्क नहीं लेगी. दैट इज वाई दिस प्रीनेटल टीटीसी वर्क्स वंडरफुली. बिफोर स्टार्ट any before start with the pregnant lady, I always prefer कि हम लोग के पास एक proper knowledge होना चाहिए. Okay, so now if like your answer is very honest, okay, like I am not sure before taking this training I should take any pregnant lady in my class or not, then it's actually fair answer. Okay, fair to ourselves also. Okay, now the third thing I want to ask you one thing. डू वी नो कि हम लोग ने एक कोई भी ब्रीदिंग रॉन्ग पैटर्न में लिया तो वो हमारे बॉडी एंड माइंड को काम करने की जगह पे वो एंशियस कर देगा. डू यू बिलीव? एवरीवन, you Yes. are a yoga teacher, you are into Yes, ma'am. yoga. Right. Perfect. Yes. Then you can you can imagine what I am trying to tell you. Okay, second thing, हमने wrong stretch ले लिया तो वो discomfort की तरफ भी लेके जा सकता है. Yes. Yes, right, ma'am. Right. लाइफ में कभी पेन नहीं था, वो पेन भी आने स्टार्ट हो सकते हैं. सेम Mm-hmm. Absolutely. हाँ, तो प्रॉपरली हमने योगा ट्रेनिंग नहीं लिया और हमने योगा की क्लासेस चालू कर दी, क्योंकि मैं खुद योगा करती थी 2 साल से. सो दैट वॉन्ट वर्क दैट वे. करेक्ट, तो वो हम लोग सामने वाले क्लाइंट को भी हम लोग डिस्कम्फर्ट में डाल देंगे, हम अपने करियर के साथ भी एक गलत चीज कर रहे हैं. करेक्ट, एंड द योगा इज अ वेरी प्योर थिंग. सो एक्चुअली ये सब चीजों के अंदर जब तक हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तब तक वो चीजों को हम लोग को ऐसे ही चालू नहीं करना चाहिए. आई हैव हर्ड सो मेनी फीमेल्स कि जो लोग ना ऐसे बोलते हैं कि मैंने प्रीनेटल की बुक पढ़ ली है, आई एम ऑलरेडी अ योगा इंस्ट्रक्टर, आई कैन स्टार्ट टेकिंग सेशन. ओके, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Okay. Now the third slide is why prenatal yoga needs special training. प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज टू मैनेज. जो हम लोगों के घर के अंदर आप देखोगे कि कभी कभी कहीं पर सुन, मैंने मेरे काफी सारे क्लाइंट्स के अंदर सुना है, बिकॉज प्री नेटल इज माई फोर्टे. सो मैक्सिमम मैं प्री नेटल के साथ वो जुड़ी हुई हूँ. ठीक है, उसमें उन लोग के घर के लोग बोलते हैं कि आपको मैक्सिमम रेस्ट करो, ज्यादा एक्सरसाइज मत करो, योगा करोगे ये हो जाएगा. क्यों? बिकॉज उन लोग के पास प्रॉपर कोई नॉलेज गाइडेंस देने वाला ही कोई नहीं है.
सो दे फील लाइक कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस इज अ डिजीज। ओके, मुझे बैठे रहना है, मुझे कुछ काम नहीं करना है, मुझे ज्यादा हलन चलन नहीं करना है। सो दिस ऑल आर एक्चुअली अ मिथ। तो हाउ यू कैन ब्रेक दिस मिथ? Okay, so that also we will going to learn in this TTC program. So it's actually a very powerful biological transformation that deserves special education, awareness, and train guidance. ठीक है, आप किसी एक्सपीरियंस से सीखोगे। सपोज मैं 16 साल से प्री नेटल के अंदर हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास वो एक एक्सपीरियंस रहता है। हर एक क्लाइंट अलग अलग प्रेगनेंसी के अंदर से वी ऑल नो कि आज मुझे जो सिम्टम्स है जरूरी नहीं है वही ट्रेमिस्टर वाली दूसरी फीमेल के अंदर भी सेम वही सिम्टम्स दिखेंगे, उनको कुछ और प्रॉब्लम रहेगी। ओके, सो वो कैसे आप लोग सीखोगे? सो प्रैक्टिकली जैसे जैसे हम लोग वो चीजों के अंदर जाएंगे, एंड द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो आई विल गोइंग टू शेयर विथ यू। इवन आगे आएगा इसके अंदर कि मैं आपको ना स्कैन, मेरे जो क्लाइंट के भी स्कैन है दैट आई विल शेयर विथ यू। वी विल डिस्कस कि कोई भी स्कैन वो करा के आते हैं तो वो टाइम पे हमें क्या चेक करना है। इफ यू हर्ड द नेम ऑफ द ब्रिज पोजिशन, जिसमें बेबी का हेड ऊपर की तरफ रहता है और उसका बॉडी नीचे या साइड में रहता है, लेफ्ट और राइट। ओके, इन दैट केस वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती है, करेक्ट? बट देर आर योगा पोस्चर्स जिसको आप सेकेंड ट्रेमिस्टर में ऐड करके उसके बेबी का हेड आप लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करा सकते हो। ओके, सो दिस ऑल विल कम इन अ प्रीनेटल TTC. नाउ next one is what you will going to learn in this program. So हम लोग ना ट्रेमिस्टर वाइज हम लोग प्रेगनेंसी के आसनास सीखेंगे। काफी सारे आसनास ऐसे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐसी है जो हम लोग फर्स्ट ट्रेमिस्टर में नहीं इंक्लूड कर सकते। ओके, इन द सेकेंड ट्रेमिस्टर वी हैव टू वर्क ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्टेमिना। In the third trimester, we have to work more on their flexibility, and majorly उन लोग के pelvic area के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके, उनके मसल्स कैसे हम लोग फ्लेक्सिबल कराए सो दैट उनका वो टाइम पे डिलीवरी का टाइम कम हो जाए। बिकॉज वी हैव हर्ड कि लाइक फीमेल्स के अंदर ना एक फियर रहता है कि मैं नेचुरल डिलीवरी कराने जाऊंगी। मैंने तो किसी का सुना था कि शी टुक 24 hours, someone has taken like 48 hours or 30 hours. ओके, उसके बाद भी उसका तो उन लोगों ने सी सेक किया। व्हाई? बिकॉज उसके वहां के नीचे के मसल्स, जो अपने फीमेल्स के मसल्स नीचे के हैं वर्जाइनल के, वो सब हम लोगों को फ्लेक्सिबल कराने पड़ते हैं। And see, if your client is doing like taking your guidance properly, believe me, आज तक का मेरा रेशियो मैं बोलूं 100 out of 98 ऐसे है कि जिन्होंने नेचुरल डिलीवरी की है एंड इन अ मिनिमम टाइम। Okay, so what we will going to do, we will going to do all the things practically. I will show you कि वो टाइम पे आप उनके ब्रीदिंग पे कैसे काम करोगे, उनके कौन से पोस्चर्स को में आप ज्यादातर उसको होल्ड कराओगे, किसमें उनको मूवमेंट्स दोगे। ओके, एंड वो एवरी डे का उसमें इफ यू हर्ड द लाइक बॉल योगा, वो टाइम पे उन लोगों को काम में आता है। सो आप उसको लेबर रूम में जाके बोलने जाओगे कि आपको ये बॉल पे बैठ के ये एक्सरसाइजिंग करनी है, so that day she will not going to listen you, okay, because she is already into pain. तो हम लोग उनको वही सेम 9 month के अंदर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर कर देते हैं कि हाउ यू विल गोइंग टू डू इट। वो एक्सरसाइजिंग के पैटर्न हम लोग उसको करा देते हैं। इन सम केसेस आई विल टीच यू कि आपको कहाँ पे उनके हस्बैंड को भी इंक्लूड करना है, बिकॉज उनका भी बहुत मेजर पार्ट है इसके अंदर। एंड इवन लाइक ड्यूरिंग द डिलीवरी डेफिनेटली शी नीड्स सपोर्ट, एंड उनका सबसे ज्यादा कंफर्ट उनके हस्बैंड रहते हैं। ओके, सेकेंडली आई एम गोइंग इन टू द लेबर रूम विद द डॉक्टर्स फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। Okay, so from last 16 years I'm going in I'm like working with the Cloud9 and the big hospitals. Okay, so that all the practical based thing we will going to learn in this, because theory तो आप पढ़ भी लोगे, पर practical हम लोग जितना करेंगे, जितने केस स्टडीज उठाएंगे, जितने अलग अलग केस के ऊपर बात करेंगे, you will get idea कि फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
ओके, सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम लोग प्रेगनेंसी योगा के अंदर ट्राइमेस्टर वाइज योगा आसनास को डिवाइड करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि जो हम लोग का वेन्स का जो रहता है उसका पूरा नॉलेज, बॉडी का नॉलेज हम लोग एनाटॉमी वाले क्लास में इंक्लूड करेंगे। देन वी विल गोइंग टू वर्क ऑन द न्यूट्रिशनल पार्ट ऑल्सो। ओके, आई विल टेल यू कि उनके कौन से मंथ के अंदर आपको कौन से फूड के आइटम्स ऐड करते जाने। इफ यू हर्ड द नेम ऑफ चरक सरिता, किसी ने पढ़ा है? ओके, आज सर्च करना। ओके, वो एक साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड, जो साइंटिस्ट ने उनके बुक के ऊपर जितने भी रिसर्च किए, दिस इज एक्चुअली आर आयुर्वेदा बेसिकली। और उन्होंने वो चरक ने उनको चरक सरिता करके एक बुक निकाला जिसके अंदर उन्होंने पूरा वो नॉलेज डाला हुआ है आयुर्वेदिक का। ठीक है, सो ट्रेमिस्टर वाइज आप उसको कौन से फूड में ज्यादा इंक्लूड करते जाओगे, कौन से कलर के फूड, बिकॉज कलर्स ऑल्सो मैटर्स। ओके, उन लोग के मूड के लिए, उनके बेबी के लिए। सी देयर इज वन स्मॉल एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। इफ मदर इज नॉट हैप्पी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो ट्रॉमा बेबी के अंदर आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। ओके, एंड दैट वी कैन सी उन लोगों के जैसे जैसे वो स्कूलिंग में जाएंगे या आगे बढ़ते जाएंगे, वी कैन सी कि अरे इसमें इतना फियर क्यों है, या ये इतना एंशियस क्यों हो रहा है। ओके, दिस ऑल बिकॉज ऑफ उसको वो टमी से, वूम से मिला है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को वैसे ही मेंटली प्रिपेयर करते हैं थ्रू दी गर्भ संस्कारा, थ्रू दी नॉलेज, थ्रू दी फूड, कि आप ऐसे आइटम्स खाओ सो दैट आपका माइंड शांत रहे। ओके, सेकेंडली वी शो देम प्रैक्टिकली। आपको कुछ चीजें, मैं आपको जो स्टोरीज बताऊंगी गर्भ संस्कारा के अंदर, फ्यू थिंग्स आई विल शेयर विथ यू, जो लाइव वीडियोस जो सब चीजें रहती वो सब हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, आपके साथ। एंड वी विल टीच देम कि ये सब चीजें कितनी इम्पैक्ट करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसको कंटिन्यूअसली ऐसे फील होता होगा कि भाई गॉसिपिंग के अंदर जा रही होगी ज्यादा, या तो घर के अंदर ऐसा एटमोस्फियर रहेगा, बच्चे के अंदर वो डेफिनेटली आता है। बिकॉज इफ यू नो, तो बेबी 5th मंथ तक जब पेट में, टमी में, वूम में रहता है, 5th मंथ ऑनवर्ड्स ना उनको सुनाई देता है सब कुछ, और वो अपनी माँ का वॉइस तो बहुत अच्छे से पहचानता है, दैट वी ऑल नो। ओके, सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू कि हम लोग उनको ऐसे ही ट्रेन करेंगे कि कैसी बातों के अंदर आपको इन्वॉल्व कर होना है, कौन सी बातों को आपको 9 मंथ्स तक इग्नोर करना है। दिस ऑल विल कम इन अ गर्भ संस्कारा। चरक सरिता का जो मैं आपको लेसन बोलूंगी एक अलग से रहेगा, जिसके अंदर हम लोग फूड के ऊपर बात करेंगे। ओके, कि हाउ यू विल गोइंग टू गाइड देम कि उनको कौन से फूड आइटम्स लेने चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Okay, next point is pranayams, meditation. So now the pranayams also can't be same. आपके ट्रेमिस्टर के वाइज उनके प्राणायाम्स हम लोग चेंज करेंगे। इफ यू नो, तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है वो टाइम पे बेबी के अंदर सबसे पहले जो डेवलपमेंट चालू होता है वो ब्रेन का रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट। ओके, सो दैट टाइम उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना होता है। वो टाइम पे उनको आसनास या उनको मूवमेंट्स की या वॉक कराने उसको हम लोग नहीं भेज सकते, बिकॉज वो टाइम पे प्लेजेंटा लाइन नीचे रहता है। एंड इफ द प्लेजेंटा इज लो और उसके अंदर हम लोग कोई आसनास कराए या रॉन्ग उनको स्ट्रेचिंग कराए या वॉक के एडवाइस दे, तो मे बी उनको मिसकैरेज होने के चांसेस हाई रहते हैं। ओके, सो दैट ऑल्सो विल कम कि उनको प्राणायाम्स में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या डालोगे सो दैट उनका बॉडी कूल रहे, प्लेजेंटा लाइन ऊपर आना स्टार्ट हो। ओके, मेडिटेशन के थ्रू हम लोग उनके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे काम करेंगे सो दैट शी विल बी कूल एंड काम ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ओके, द नेक्स्ट इज ब्रेन डेवलपमेंट म्यूजिक, आई विल शेयर विथ यू। सो हम लोग ट्रेमिस्टर वाइज उनके ना म्यूजिक चेंज करते हैं। वाई, इफ यू हर्ड कि जो माँ ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सितार, वीणा वैसे वाले म्यूजिक सुनती है, ओके, उसके बच्चे के अंदर भी ना वो उतना अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट एंड उसका बॉडी भी, इवन फिजिकल हेल्थ ऑल्सो इम्पैक्ट अ लॉट बिकॉज ऑफ म्यूजिक। तो हम लोग फास्ट म्यूजिक उन लोग को मना करते हैं कि नहीं सुनना है, आपको ऐसे मूवीज नहीं देखने जाने हैं। क्यों? बिकॉज थ्रू दी मदर
child can understand each and everything. आपने कुछ ऐसा उसको सीन दिखाया कि जिसके अंदर मूवी के अंदर वो कुछ भी ऐसा फाइटिंग वाले सीन चल रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है, सो बेबी ऑल्सो रिएक्ट. सो देर इज वन वीडियो ऑन दैट, जो इटालियन साइंटिस्ट ने एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर उन्होंने पूरा एक रिसर्च किया था. व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो वो जो उन्होंने मशीन लगाया था उसके अंदर देर इज वन ब्यूटीफुल वीडियो विच आई विल शेयर विथ यू. ओके, हस्बैंड एंड वाइफ ना दोनों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं वो टाइम पे. शी वॉज वेरी हैप्पी. तो बेबी के मूवमेंट्स भी वैसे थे. एंड लाइक आफ्टर सर्टेन पीरियड कुछ ऐसा हुआ और दोनों के बीच में कुछ फाइट हुआ, आर्ग्यूमेंट्स एंड वो सब हुआ. वो टाइम पे हस्बैंड ने थोड़ा वायलेंस दिखाया, कुछ उन्होंने क्रॉकरी तोड़ा उसके सामने, कुछ ऐसे बिहेव किया. तो जितनी बार उसकी माँ डरी उतनी बार ना बच्चे ने अंदर की तरफ अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया. ओके, सो दिस ऑल मैटर्स अ लॉट. सो दैट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू, हम लोग ये सब केस स्टडी के थ्रू वी विल गोइंग टू टीच दैम कि भाई आप कैसे बिहेव करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ कैसे रखोगे, इससे क्या इम्पैक्ट दिखेगा आपके बच्चे के अंदर. ओके, दिस ऑल वी विल कवर ऑन अ प्रैक्टिकल बेस्ड. Now the activities. So mindful activities like play major role. सपोज मैं बोलूं कि उनको हमने बोल दिया कि आप रेगुलर बेस पे मंडाला बनाना चालू कर दो, छोटे छोटे मंडालास. यू डोंट हैव टू टेक आउट 2 hours और 3 hours फॉर दैट. ओके, 15 minutes उसके लिए निकाल लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए निकाल लो. सो आर्ट भी आपके ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट पे काम करेगा, या मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपके लेफ्ट या राइट पे काम करेगा. दिस ऑल मैटर्स. तो उनको हम ना पूरा ग्राफ के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन द गर्भ संस्कारा एंड इन द माइंडफुलनेस सेशन में. ओके, कि आप ये एक्टिविटीज करोगे तो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ये एक्टिविटीज से उनका राइट ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा. ओके, दिस ऑल विल ऑल्सो कम इनटू दिस टीटीसी प्रोग्राम. देन एज आई टोल्ड यू, हम लोग उनको स्मूथ डिलीवरी के लिए रेडी करेंगे. सो देर आर फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज. We will going to do one practical thing. Okay, that you will get to know कि मैं आपको क्या डिफरेंस बताना चाहती हूँ. एक ही ब्रीदिंग का पैटर्न है, पर उनको हम लोग जब चेंज करते हैं तो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. ओके, and at last we will share, once you will done with your program, we will going to share the certifications also. Okay, in this. Okay, so now sit comfortably, everyone. Close your eyes. Bring your full attention towards the nostrils and see the pattern of your breath. Prepare yourself to stay in the present moment. And today, we will going to focus on a breathing for a few seconds. You have to feel awareness and sensitivity. So place one hand very gently on your chest and one hand on your belly. Now just notice, no forcing, no control, just observation. Inhale gently through your nose. Exhale very slowly through your nose. In the second round, we'll go with counts. So inhale for 4 counts
and exhale for 5 counts. One more time, repeat the same. Inhale for 4 counts and exhale for 5 counts. Now relax, complete relax, and gently open your eyes. As a teachers, we choose this breath because it calm anxiety and improve oxygen supply. Correct? In the pregnancy, the first trimester, we tell them to focus on more inhalation compared to exhalation. During the pregnancy, the female cannot contract that tummy. ओके वो एक्सिल कर सकते हैं पर बहुत स्लोली विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग टमी मसल्स इन ओके सो ये उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है द सेम थिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब वो आते हैं दैट टाइम वी टेल देम कि आप अभी 5 काउंट्स तक इनहेल कर रहे थे नाउ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन 7 काउंट्स एंड ट्राई कि आपके काउंट स्लोली स्टेडीली इनहेलेशन के बढ़े ओके एंड एक्सिलेशन के टाइम पे वी हैव टू टीच देम कि आपको आपके हार्ट के ऊपर फोकस करना है ओके व्हाई बिकॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ना बेबी के मूवमेंट्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं दैट टाइम इफ वी टेल देम कि आपका एक्सिलेशन लंबा हो सकता है चलेगा ओके व्हाट विल हैपन हमको तो अंदर पता नहीं है कंटिन्यूस तो हमने कोई मशीन नहीं लगाया उनके टमी के ऊपर बेबी जब घूमता है एंड एक्सिलेशन बहुत ज्यादा लंबा होता जाता है तो बेबी विल मूव डाउन साइड अपने नीचे की तरफ वो सरकना स्टार्ट हो जाता है विच इज वेरी रॉन्ग ओके इन फॉर अ सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग उनको सिखाते हैं इनहेल फ्रॉम नोज एंड लॉन्ग एक्सिलेशन फ्रॉम माउथ वाई क्योंकि उसको ना वो टाइम पे उनका एंशियसनेस बढ़ना चालू हो जाता है ब्रीथलेसनेस डेफिनेटली फील होता है बिकॉज टमी आगे आएगा उनके ऑर्गन्स प्रेस होंगे उनके लंग्स के ऊपर भी प्रेशर जाता है सो दे फील दैट वे कि मुझे ना ऐसे लग रहा है कि आज डिजीनेस लग रहा है आज आई फील लाइक कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है सो दैट टाइम हम लोग ना उनको अलग अलग पैटर्न के थ्रू उनका जर्नी जितना स्मूथ हम लोगों से हो सके उतना हम लोग हेल्प करते हैं ओके थर्ड थिंग आपने सुना हो तो कि प्रेगनेंसी के अंदर ना हम लोग कभी भी ब्रीथ रोक नहीं सकते सपोज हम लोग जो बॉक्स ब्रीदिंग की बात करें तो नॉर्मली व्हाट वी डू कि 4 काउंट तक इनहेल देन 4 काउंट स्टॉप आवर ब्रेथ अगेन 4 काउंट एक्सेल एंड 4 काउंट होल्ड आवर ब्रेथ राइट इन हर केस और इन प्रेगनेंसी आप उनको कभी भी होल्डिंग नहीं सिखा सकते व्हाई बिकॉज जैसे ही वो लेडी होल्ड करेगी बच्चों अपने आप तो ऑक्सीजन नहीं ले सकता है ना उसको तो उसकी माँ देगी तो ही मिलेगा द सेम वे वो खाना खाएगी तो ही उसको मिलने वाला है करेक्ट तो वो टाइम पे उनका जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है तो ब्रेन डेवलपमेंट वो सेकेंड्स के अंदर स्टॉप हो जाता है उसके बॉडी के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट्स जो ब्लड की वजह से वो चल रहे थे वो कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाते हैं ओके एंड विच इज नॉट करेक्ट वे सो वो टाइम पे हम नहीं सिखाते पर जब वो डिलीवरी में है तब हम उसको बोलते हैं यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर पुशिंग योर चाइल्ड क्यों क्योंकि वो टाइम ना बेबी ऑलरेडी बाहर आने के नीचे तक आ गया है उसको अभी थोड़े टाइम में बाहर आना है सेकेंडली मदर के को वो सब इंजेक्शंस और वो सब दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस कि दैट विल हेल्प कि बेबी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे अंदर जब वो बाहर आ रहा है सो वो टाइम पे हम लोग पर्पसफुली उसको ब्रीदिंग को होल्ड कराते हैं फॉर लॉन्ग टाइम एंड वी टेल देम कि पुश करो ओके सो दैट बेबी कैन कम फास्ट करेक्ट तो वो जो प्रेशर हम लोग डिलीवरी के टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं कर सकते ओके सो दिस इज द वन एग्जाम्पल एंड द सेकेंड वन विल डू दिस आसना बटरफ्लाई पोज बधा कोनासना
ओके, वी ऑल नो कि ये वाला पोस्चर हर एक लेडी के प्रेगनेंसी के अंदर सबसे बेस्ट पोस्चर बोला गया है। ओके, पर यही पोस्चर के अंदर उसको आप स्ट्रेचिंग भी दे सकते हो, उसको आप रिलैक्सेशन भी दे सकते हो। हाउ? सो फर्स्ट, इफ वी आर सिटिंग इन बटरफ्लाई पोजिशन, कैन यू सी मी? दिख रहा है मेरा लोअर बॉडी? No. Okay, let me go back. Now, Yeah. great. Now see, in the first trimester, what we teach them कि आप जब और ये एक सिंपल सा एक एक पोस्चर पे अभी बात कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, दैट्स व्हाई। ओके, सो now in a Baddha Konasana, in the first trimester, what you will teach her, you have to go with the slow movements. इसमें आपको फास्ट मूवमेंट्स नहीं देने। ओके, तो हर एक पोस्चर्स, हर एक स्ट्रेचिंग जो आप लोगे वो सब आपको उसकी ब्रीदिंग के साथ इंक्लूड करके उसके बॉडी को वो तरफ उसको स्ट्रेच करवाना है। ओके, सो इन दिस आसना इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी टीच देम कि आपको स्लो जाना है यहाँ पे। सेकेंडली, आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में द सेम पोस्चर शी विल गोइंग टू डू इट, पर आप वो टाइम पे ना आपके काउंट्स बढ़ाओगे और उनके मूवमेंट्स पे आप फोकस कर सकते हो और उनको थोड़े फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स में जाने के लिए बोलोगे। व्हाई? बिकॉज नाउ वी आर स्टार्ट क्रिएटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी पे हम लोग काम करते हैं। Okay, the third thing, in the same posture, when she will going to place both the hands back side and she is opening her heart chakra, उससे ना आप भी करके अभी देखोगे तो आपको ना पूरा स्पाइन पे अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। So what we will going to do in this part of our TTC, I will show you few picture with you कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका पूरा पीछे से उसका स्पाइन कर्व होना स्टार्ट होता है। सो ऑलवेज शी हैज अ कंप्लेंट लाइक कि यहाँ पे मुझे ना हैवीनेस लग रहा है या तो मुझे पेन है, मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है एंड शी कैन नॉट स्लीप स्ट्रेट ऑल्सो, उनके बैक पे वो सो नहीं सकते। तो ड्यूरिंग योर आसना सेशन आप ऐसे वाले पोस्चर्स को ऐड करोगे विच विल गिव हर अ रिलैक्सेशन। ओके, दिस ऑल विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट एंड क्लाइंट्स को भी आपके वो सब सेशंस के अंदर ना बहुत मजा आएगा। ओके, शी विल अप्रिशिएट यू। तो ऑलवेज लाइक आप जो भी आसनास हम लोग डिस्कस करेंगे इन द टीटीसी, आई विल टेल यू कि उसके इम्पैक्ट कहाँ है, उसके स्ट्रेच कहाँ पे आने चाहिए, उसके मूवमेंट्स आप कितने ले सकते हो, काउंट्स कितने ले सकते हो मैक्सिमम। ओके, so this all we will going to cover in this. Secondly, हम लोग नॉर्मली भी बात करें तो जब हम लोग बटरफ्लाई पोस्चर करते हैं फीमेल के लिए तो बोला ही जाता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर। व्हाई? बिकॉज वहां पे अपने पेल्विक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वो इंक्रीज करता है। ओके, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने हॉर्मोन्स के लिए भी। ओके, जितना आपका ब्लड फ्लो वो रीजन में अच्छा रहता है उतना ही आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स कि हम लोग एक एक छोटे छोटे पोस्चर्स लगते हैं पर दैट विल गिव यू अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। Okay, now the few things I want to discuss with you कि एज अ टीचर आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए। एज अ प्रीनेटल योगा टीचर आपका फोकस उन लोगों के मूवमेंट से ज्यादा आप फोकस करोगे कि उनके अलाइनमेंट्स क्या है। सपोज सेम पोस्चर में बटरफ्लाई के अंदर व्हेन इफ शी विल सिट दिस वे, शी इज लिटरली प्रेसिंग हर टमी, तो आप उसको ना वो सब चीजों के अंदर आप ज्यादा फोकस करोगे कंपेयर टू हर मूवमेंट, क्योंकि लेडी टू लेडी ना फ्लेक्सिबिलिटी अलग रहती है। आई हैव सीन कि जो लेडी यानी काफी सारी लेडीज जिनका लोअर बॉडी एक्चुअली में बहुत स्टिफ रहता है बट उनका डिलीवरी बहुत स्मूथ हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है।
ओके, व्हाई? बिकॉज उनके जो अलाइनमेंट्स है बॉडी के, जो टाइम पे जहां पे प्रेशर जाना चाहिए वो अच्छे से दे रहे हैं। एंड आई हैव सीन मैनी फीमेल्स कि जिनका ना फुल यानी लेग्स ओपन हो रहे हैं, देन टू शी इज लाइक फीलिंग शी फेस सो मच प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डिलीवरी। ओके, सो दैट ऑल मैटर्स अ लॉट कि आप उनके पोस्चर्स के ऊपर, आप ज्यादा उनके अलाइनमेंट्स के ऊपर काम करोगे इंस्टेड ऑफ मूवमेंट्स। ओके, कि नहीं मुझे तो 20 आपके स्ट्रेच लेने हैं, नहीं, दिस इज डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। वो लेडी की भी कितनी कैपेसिटी है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, फ्यू सेशंस के अंदर ही आपको समझ में आ जाता है। सी, वी ऑल आर टेकिंग नॉर्मल बैचेस आल्सो, राइट? तो हम लोग को पता है कि उन लोगों को स्लोली स्टेडीली ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाया जा सकता है, एक दिन में नहीं हो सकता है। बट इन दिस केस प्रीनेटल के अंदर आप लोगों का पेशेंस बहुत काम लगता है। ओके, सो इन दैट केस यू कैन नॉट लूज द पेशेंस। अरे इसका तो अभी भी ये बराबर से नहीं हो रहा है, इसका डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। उनके डेज बढ़ा दो, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ओके, वो सब पोस्चर्स को लेके आप वैसे कर सकते हो, पर लंबे लंबे होल्ड या लंबे लंबे उनको मूवमेंट्स नहीं दे सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन is you have to observe their bodies. Secondly, you have to start reading the discomfort sign. So वो आप कैसे करोगे, दैट ऑल्सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन टीटीसी। ओके, क्या आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये ना अभी इसका यानी दिस इज द लास्ट पॉइंट ना, इसके आगे मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं दे सकती हूँ। ओके, सो दैट ऑल्सो लाइक कि उनकी जब आप बॉडी के स्ट्रेचिंग लेते हो ना, अचानक से वो बॉडी जब टाइट करने लगते हैं, इट मीन्स कि उनसे अभी ज्यादा हो नहीं रहा है, पर हमारे काउंट्स बाकी है, इसलिए शी हैज टू पुश हर सेल्फ। तो वहां पे हम लोग को रुकना है। ओके, सो दैट एवरी सिंगल थिंग आई विल गोइंग टू टीच यू इन द टीटीसी। नाउ ऑलरेडी वी टॉक अबाउट, मैंने इसमें ऐड किया था कि वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंफीरियर वेना कावा वेन, बट दैट ऑलरेडी आई टॉक्ड। ओके, कि वो वेन अपने बॉडी में क्या काम करता है, तो लोअर बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ लाने के लिए उनका मेजर रोल है। ओके, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन एनाटॉमी पार्ट। ओके, the next topic, my most favorite topic, गर्भ संस्कारा। ओके, वी ऑल नो कि संस्कार बहुत जरूरी है, करेक्ट? क्योंकि काफी हम लोग भी जो रेगुलर लाइफ में भी मिलते हैं, तो हमें भी पता है कि सपोज अपने फ्रेंड, एक ग्रुप ही समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। वी ऑल नो कि हर एक का ना नेचर अलग अलग है, हर एक का जीने का स्टाइल अलग है, रिएक्ट करने का स्टाइल अलग है, करेक्ट? एंड ये हम ये बोले कि अभी आप ये एज में आके चेंज कर लो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, वो सब चीजें ना जितने अर्ली स्टेज में होती है उतना वो इंसान चेंज हो पाता है। आफ्टर सर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज आवर हैबिट, टू चेंज आवर सेल्फ। ओके, द सेम वे जब एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसका रोल ना सिर्फ उसके बॉडी के रिलेटेड या बेबी को मैं अच्छा खाना दे दूं या मैं अच्छे से सो जाऊं उस पे नहीं होता है। ओके, या तो मुझे खुश रहना है, मैं घूमू फिरूं तो मेरा बच्चा अच्छा आएगा, नो, शी हैज टू फोकस ऑन बेबी संस्कार ऑल्सो। सो देर आर 16 संस्कार, उसमें से 14 संस्कार वो लेडी बेबी को गर्भ में से ही दे सकती है। Okay, so in the Garb Sanskara, we will discuss all the Sanskaras topic wise. Okay, secondly, this is not ritual, but it's actually a conscious communication. तो वो लेडी अपने बच्चों के साथ बात कैसे करेगी? नाउ इफ आई एम टेलिंग यू कि बच्चे को वो बोलेगी कि बी अ इंटेलिजेंट पर्सन, और वो इंटेलिजेंट बनने लगेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, बेबी को वो पता ही नहीं है। सो नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम लोग का रोल कहाँ आता है? वी टेल हर कि जब हम लोग इंटेलिजेंट बात वर्ड को बात कर रहे हैं, सो दैट टाइम व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज कमिंग इनसाइड यू।
ओके, बेबी को माँ के इमोशन समझते हैं, द वे शी फील्स वो समझता है। सो इन द गर्भ संस्कारा हम लोग उसको ऐसे ट्रेन करेंगे जहां पे वो अपने इमोशंस पे बैलेंस रहे। सेकेंडली हम लोग उनको जो रोज रोज अलग अलग जो वर्ड्स देंगे, मैनिफेस्टेशन के सेंटेंसेस देंगे, सो हाउ शी विल गोइंग टू डू इट विद हर चाइल्ड, उसको कैसे वो गर्भ संस्कार के थ्रू वो अंदर उनको बेबी को वूम में देगी। ओके, सेकेंडली वी विल टीच देम इमोशनल बॉन्डिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज। हम लोग देखते हैं हर एक के फैमिलीज ना अभी न्यूक्लियर होने लगे हैं। ओके, ज्यादा या तो फिर घर में उतने लोग नहीं होते, या तो फिर हर एक का जॉब की वजह से, बिजनेस फॉर एनी अदर रीजन, सबको अलग अलग ज्यादा अभी रहते हैं। सो इन दैट केस वो इमोशनल बॉन्डिंग उसको कैसे मिलेगा? सो उसके माँ उसको देगी कि आप कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, वो सब बहुत मैटर करता है। ओके, एंड इन दैट केस लाइक अभी तो बच्चे भी हम लोग कम करने लगे हैं, सो दैट उनको वो भी नहीं पता है बच्चों को कि भाई एक बॉन्डिंग कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, उन लोग के पास बहुत कम अभी वो सब चीजों को समझने के लिए बचा है। सो थ्रू दिस टॉपिक इमोशनल बॉन्डिंग, वी टेल हर कि उनको कैसे इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ानी है बेबी के साथ, सो दैट वो जब बड़ा हो तो वो बाहर की दुनिया में कहीं हेल्प ढूंढे नहीं, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को सबसे पहले उसकी हेल्प बनाए। ओके, then how she will going to do that also we will discuss deeply in all the topics. Okay, now let's do एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस how this works. Secondly, sound and the music which we already talk about उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमने मैनिफेस्टेशन के सेंटेंसेस उनको देंगे, वो टाइम पे उनको घर पे उसको आप एक पूरा शेड्यूल बना के दोगे कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, बिफोर लाइक स्लीप आपको क्या करना है। ओके, सो वो टाइम पे वो म्यूजिक आपको प्ले करना है व्हेन यू आर डूइंग दिस मैनिफेस्टेशन विथ योर चाइल्ड। आपको फील कैसे करना है अपने बेबी को, इमोशंस कैसे पास करने हैं, कौन से इमोशंस ऐसे हैं जिनको आपको आएंगे तो सही। सी इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी इंसान 365 डेज कंटिन्यूस हैप्पी रहे, थोड़े अप एंड डाउन आने वाले हैं, पर इन दैट फेज जब आप डाउन में हो, आपके इमोशंस बहुत नीचे है, वो टाइम पे आप कैसे उसको अपलिफ्ट करोगे एंड बैलेंस रहने की ट्राई करोगे। दिस ऑल वी विल like take it in a garb sanskara. Few stories we will going to share, okay, with you, so that the same story you can take forward with the that your clients. Secondly हम लोग उनको बुक्स का देंगे कि आपको कौन से बुक्स रीड करने, कौन से टाइम पे, कैसे कैरेक्टर्स पे फोकस करना है, जेंडर्स पे फोकस नहीं करना है, दैट एवरी सिंगल थिंग हम लोग प्रैक्टिकली पहले हम लोग आपको सिखाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट इन योर करियर। ओके, नाउ सिट कंफर्टेबली एंड वन मोर टाइम क्लोज योर आईज, relax your breath, relax your body, relax your mind. Place one hand on your heart chakra, center of your chest, and feel your heartbeats. उसके लिए आपको बहुत शांत होना पड़ेगा आपकी हार्ट बीट फील करने के लिए। Bring your full attention towards your heart chakra and try to feel your heartbeats. Now slowly the same hand, place it on your belly, on your tummy,
The second hand also very softly place it on your tummy and imagine your smiling face in your closed eyes and feel the changes in your mood. जब विदाउट रीजन हम स्माइल करते हैं तो इमीडिएटली हमारे मूड के अंदर चेंजेस हम फील कर सकते हैं. Now this is making you feel safe. The same you have to imagine you are in front of your client and she is pregnant and you are placing your both the hands on her belly very gently and giving your vibrations to that particular child with good mood and telling that lady to place her hands also on her tummy. Feeling safe with child. Take a breathe, inhale, exhale. And slowly place one hand on your heart chakra, center of your chest, and one hand on top of your head on your Sahasrara chakra. Just be with yourself and imagine you are healthy, you are happy. Imagine your smiling face, your healthy body, and you are happy. Take a breath there and rub your palms. Place it on your eyes. Feel on your face, neck, shoulders, hands, body. Slowly open your eyes. See, we are not pregnant. तो हम लोगों को पता तो चलेगा नहीं कि वो टाइम पे वो इमोशन बेबी के पास या मदर को क्या फील हुआ. ओके, बट दिस इज द वे कि आप कैसे स्लोली स्टेडीली वो क्लाइंट को आप फील करा सकते हो. ओके, कि उनको कैसे हाथ रखने हैं. पर सबसे पहले जब हम भी सब आपको पता हो कि हम किसी को भी अपने से छोटे जो है उनको कभी भी ब्लेसिंग देते हैं. ओके, सो व्हाई वी चूज पर्टिकुलर प्लेसेस, बिकॉज हमें भी पता है कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो है. ओके, सो व्हेन आप किसी के बच्चे के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आपके वाइब्रेशन आप चाहते हो कि अच्छे जाए, तो उसके पहले आपका मूड भी तो अच्छा होना चाहिए. सपोज मैं कहाँ से किसको मिलके आ रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं उसको गर्भ संस्कार करा रही हूँ, फिर मैं उसको मेडिटेशन के लिए बिठा रही हूँ एंड आई एम प्लेसिंग माई हैंड ऑल्सो ऑन हर टमी. तो वो बेबी ना कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है, मुझे कौन से इमोशंस और वाइब्रेशन मिल रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न इन टीटीसी कि आप पहले कितने अलाइन होंगे, आप कितने अपने इमोशंस के अंदर बैलेंस बनोगे, फिर सेम चीज आपको वो लेडी के अंदर लानी है. ओके, बिकॉज सी ये ना बहुत रिस्पॉन्सिबल मूव है जो आप लेने वाले हो. ओके, इट्स नॉट अबाउट वन लाइफ, it's about two life.
मदर एंड बेबी बोथ। और ये सब चीजें जब हम लोग करते हैं तो आई वांट कि हम लोगों के अंदर उतना प्योरिटी होना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आपकी जितनी अच्छी प्योरिटी रहेगी आपका करियर उतना अच्छा ग्रो करेगा। आप वो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो तो सामने वाला डेफिनेटली आपको उतना ही प्रेस करेगा, सालों तक याद करेगा। ओके, सो दिस ऑल मैटर्स कि आप उसको क्या फील कराओगे उसकी प्रेगनेंसी के अंदर। सो एवरीथिंग वी विल गोइंग टू कंसिडर इन अ गर्भ संस्कारा। ओके ओके, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग उनको मैनिफेस्टेशंस देंगे तो उसके अंदर भी हम लोग प्रेमिस्टर वाइज ना चेंज करते जाएंगे। ओके, बिकॉज बेबी ग्रो होता जाएगा। ओके, ऑलवेज हम लोग तो उनको फर्स्ट डे से ही ऐसे इमेजिन करने को बोलते हैं कि यू हैव टू इमेजिन फुल्ली ग्रो बेबी। भले हम आपको सिखाए कि अभी बेबी का हार्ट बन रहा है, अभी बेबी का लंग्स बन रहा है, इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ उस पे फोकस करोगे। आपको फोकस किस पे करना है? बेबी को फुल्ली ग्रो देख के आपके हैंड के मूवमेंट्स कैसे रहेंगे, हाउ यू विल गोइंग टू इमेजिन बेबी का हेड का पोजीशन। ओके, बिकॉज बेबी विल अंडरस्टैंड कि उसकी माँ क्या चाहती है, कि मुझे यहाँ पे हेड रखवाना चाहती है, यहाँ पे चाहती है। ओके, दिस ऑल लाइक हम लोग उनको बहुत डिटेलिंग में सिखाएंगे कि आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप कितना आपको अपने आप को शांत करना है उसके पहले। ओके, जस्ट बिकॉज के मेरे योगा टीचर ने मुझे बोला है मैनिफेस्टेशन मुझे इतने बजे करने बैठना है तो मुझे करना है, नो, दैट वे इट वॉन्ट वर्क, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। ओके, सो दैट एवरीथिंग प्रैक्टिकली वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस। डू यू हैव एनी डाउट्स कि मैं आगे जाऊं? No, ma'am, all clear. ओके ग्रेट। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, यू आर सेइंग समथिंग रजनी? No, it's great. ओके All clear. ओके ग्रेट। Sorry, yeah. Actually, I have some doubt, not doubt about the class that you have taught to us, the explanation that you have given. I have some doubts about like about the schedule of the class, and we are going to get that when that class going to be scheduled, and if we are going to get the recordings or something like this. Okay, okay. That definitely we will going to discuss with Jay sir. Okay, he will like explain you everything. See, I'm just explaining you my part कि मैं आपको क्या टीटीसी में कराने वाली हूँ। डेफिनेटली आपके टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग टू कंसिडर कि आपको कौन से टाइमिंग सूटेबल है, हम लोग के भी वो फिजिबल है कि नहीं, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। ओके, नथिंग टू वरी। सो टिल नाउ लाइक हम लोगों ने जो जितना थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमने लिया है उस पे कुछ भी डाउट नहीं है, देन कैन आई गो फॉरवर्ड? Yeah, sure, ma'am. ओके ओके It's ग्रेट, all. थैंक यू, थैंक Yeah. यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन करियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो प्रीनेटल के अंदर वेरी फर्स्ट इफ आई एम टॉकिंग टू यू प्रैक्टिकली, आप कहीं पर भी कोई भी क्लिनिक पे जाओगे, हॉस्पिटल्स में जाओगे, एंड इफ यू आर टेलिंग देम या तो डॉक्टर्स को कि मैं योगा टीचर हूँ, सो नाउ द थिंग इज कि उनको भी पता है कि जो प्री नेटल करके आया है उनके पास नॉलेज डिफरेंट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, सो दे विल आस्क फॉर सर्टिफिकेशन। ओके, सो आप सर्टिफिकेशन रखोगे और सपोज आपके साथ कोई और भी है जिन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ है, एंड इफ दैट पर्सन इज टेलिंग लाइक मुझे पता है कैसे होता है कैसे करना है, देन द डॉक्टर विल नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देम। वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली देंगे इसके अंदर। ओके, सो इमीडिएटली आप ना जैसे ही हमारा ये कोर्स फिनिश होता है यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी, इफ आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ तो मेरे काफी सारे क्लाइंट्स ओवरसीज के हैं। ओके, मैंने डिलीवरी भी ऑनलाइन करा क्योंकि मैं उनको पहले से ही उतना प्रिपेयर कर देती हूँ कि मुझे ना वो डिलीवरी रूम में सिर्फ कैमरा लगाते हैं ना, एंड आई जस्ट हैव टू टेल देम कि याद करो ये चीज में हमने ऐसे किया था, स्टार्ट डूइंग दैट वे। उनके हस्बैंड को हम लोग वैसे ट्रेन कर देते हैं, सो वो भी हमारे सपोर्टिव बन जाते हैं वो टाइम पे। ओके, सो दैट एवरीथिंग लाइक वी कैन डू इट
with the overseas clients also. So it is not something like कि आपको offline के clients मिलेंगे तो ही आपका career है इसके अंदर. Like through online overseas को भी आप pitch कर सकते हो, उनको भी आपके sessions दे सकते हो. Okay, and that is like my personal practical experience I am telling you. कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. लोग जो डरते भी है कि नहीं हम लोग ऑनलाइन करेंगे तो क्या ये वो, नथिंग टू वरी. आप भी इतने यानी क्लियर हो जाओगे ये सब चीजों के अंदर कि इमीडिएटली यू विल गेट टू नो कि ये बंदी ने बराबर से किया है कि नहीं किया है स्ट्रेच. सो नथिंग टू वरी फॉर ऑनलाइन पार्ट ऑल्सो. आई विल ट्रेन यू दैट वे कि आप कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन भी उतनी ही अच्छी क्लास लोगे जितनी ऑफलाइन लोगे. ओके, नाउ if like you are serious about yoga as a profession, this training gives you credibility, structure, and the purpose. Believe me, the most respectable and satisfactory job which will also a strong career option. इसमें भी अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा है if you are taking yourself like as a prenatal yoga teacher. ओके, द नेक्स्ट वन कि हम लोग का फोकस ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी पे नहीं रहेगा. द नेक्स्ट इज हम लोग उसके चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर दैट उसके पोस्ट पार्टम रिकवरी में भी हम लोग हेल्प करने वाले हैं. ओके, सो इन दैट कोर्स this is just a prenatal and childbirth, but we are going to include the post pregnancy also. ओके, सो इफ यू नो कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट नहीं है दैट टाइम उसके हार्मोनल लेवल की बात करें तो वो 0 to माइनस में रहते हैं. ओके, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी उसके हार्मोनल चेंजेस आएंगे एंड इफ यू चेक इन द रिपोर्ट तो वो सीधा ना 75,000 प्लस इंक्रीज हो जाते हैं. जब बेबी वो बॉर्न कर देती है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ वापस उसके हॉर्मोन्स ड्रॉप होते हैं अगेन टू द जीरो एंड गोइंग टुवर्ड्स द माइनस. सो इट्स अ बिग चेंजेस. ओके, उसको मेंटली उतना सारा वो सब चीजों के अंदर उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मेंटली एंड फिजिकली. एंड दैट टाइम इफ समवन is going to hold her hand and tell her कि ये जर्नी भी हो सकता है पीसफुली. यू कैन कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ विथ लाइक हार्मोनल बैलेंस के साथ, आपके बॉडी आपके हेयर स्किन के साथ यू कैन कम बैक. ओके, विथ फुल फ्लैट. तो वो लेडी को ना जर्नी इजी लगता है बेसिकली, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद उसका जर्नी वहां पे खत्म नहीं हो रहा है, उसका एक नया लाइफ स्टार्ट होने वाला है. ओके, उसके अंदर भी काफी सारे उसको चेंजेस लेने हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आने वाले हैं उसके, सो दैट उसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स पे भी इम्पैक्ट होते हैं. ओके, बिकॉज लोगों को लगता है कि अरे ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, बट नो वन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि उसके हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हैं कि दैट लाइक फॉर हर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे नॉर्मल. ओके, सो वो सब चीजें हम लोग इवन एक सेशन के अंदर बिफोर शी डिलीवर्ड द बेबी हम उनके हस्बैंड को बुलाते हैं लेक्चर्स के अंदर. वी टेल देम कि भाई आप इनके साथ कैसे बिहेव करोगे, आप उनको कैसे मेंटली सपोर्ट करोगे सो दैट वो जल्दी से वापस आ पाए उसकी नॉर्मल लाइफ के अंदर. ओके, सो दैट पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड बट इट इज देयर in your prenatal, childbirth and post pregnancy part. Okay, now the next one, and secondly I want to talk about the income also. So we know it कि लोग ना आजकल बहुत कम चार्जेस के अंदर भी पर मंथ योगा कराते हैं, पर आपने ना कहीं नहीं सुना होगा कि प्रीनेटल के अंदर आपको इतने कम पैसे मिलेंगे. ओके, बिकॉज प्रीनेटल इज अ फील्ड कि जहां पे आप ना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो. पर कब? व्हेन यू आर सर्टिफाइड, जब आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो तरीका है कि हाउ यू विल गोइंग टू डू विथ वन लाइफ. ओके, सो वो आप जब वो तरीका सीख जाओगे यू कैन चार्ज like premium in this. Okay, so this is also like practically I am telling you कि ये मेरा खुद का experience है कि we can earn so good in a prenatal and postnatal.
Okay, so you can like keep it in your mind कि ये एक अच्छा आपका इनकम सोर्स बन सकता है. Now the next one is your step. So like after this completion of TTC with us, you will get certifications. We have very limited seats, so if you are interested तो आज या कल में ही सर से बात कर लेना. Okay, and about your like experience, whatever the experience with me today, please share with us. Yeah. So anything like you want me to talk about, or is it enough? It's enough, Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, enough, ma'am. Thank you so much. Great, great, great. great Sir, experience Jay, with you. thank you. Ma'am, how long this course duration? 1.5 month. Okay. Yes. So days, timings, like everything, we will discuss with you. We will post it in the group or personal in the WhatsApp. So you will get a full idea कि how it will go. ओके, वीकली कितने डेज रहेंगे, उसका हर एक सेशन का ड्यूरेशन कैसे रहेगा, द टॉपिक्स हमने जो बड़े आपको सिर्फ दिखाए हैं उसको डिटेलिंग में आपको मिलेगा. ओके, सो मटेरियल ऑल्सो यू विल गेट इट. सो जो आपको आपकी साइड से रीड करना है. Okay, and we will going to solve your doubt, and like after finishing this TTC also, I and sir will be always there. आप कहीं पर भी अटकते हो, any guidance you want, anytime you can ask me. Okay, जो मेरे पास जितना knowledge है, I will give you my best. Okay, great. So can we Thank sit you. comfortably for a second and we'll close our eyes and we'll show our gratitude. Okay, sit comfortably. Close your eyes. Bring your full attention towards your breath, towards your body, towards your mind. Relax yourself completely. Take a breathe, inhale, exhale. And pray to the God or the universe. Please bless me with all kind of positivity, health, wealth, happiness, and unconditional love. Now show your gratitude towards the God or universe for this beautiful life, your parents, your guru, and the people who helped you. Take a breath, inhale, exhale. Inhale, exhale. See your smiling face in your closed eyes. And rub your palms. Place it on your eyes. Feel on your face, neck, shoulders, hands, body. And slowly open your eyes. Done, everyone? Yeah, done, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you for Bye. this. Take care. Yes. Thank Bye. you. Bye. Thank Bye. you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so Yeah. much. Yes. Thank Thank you. you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Take care.